Namaskar all the students, myself Umesh Kaur Shekhawat and I will teach you the chemistry. And in the last video we discussed about the solid state, the introduction of solid state, that is what is the solid, and then the type of solid, that is crystalline and the amorphous solids. And again the crystalline solids are divided into four parts, that is ionic solids, metallic solids, covalent solids, and molecular solids. And again the molecular solids are again divided into three parts on the basis of forces: the polar molecular solids, non-polar molecular solids, and then the hydrogen bonded molecular solids. And then after the molecular solids we discuss the crystal lattice. The 3D arrangement of the constituent particles is called as a crystal lattice. And the unit cell and the parameters of the unit cells, that is axial distance and axial length is, and the unit cell again divided into classification, that is divided into two parts, that is primitive or non-primitive, and non-primitive again divided into three parts, that is simple face centered cubic unit cell, body centered cubic unit cell, and then the end centered cubic unit cells. Now next topic is Bravais lattice. What is the Bravais lattice? Bravais is a scientist, that is a French mathematician, in the 1848 established 14 different type of lattices called as a Bravais lattice. Okay, the Bravais lattice gives the 7 crystal systems and the 14 possible variations of the unit cells in the whole 7 crystal system. हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमने लास्ट में जो देखा क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूब टाइप की यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है, उसमें हमने देखा प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड, एंड देन द एंड सेंटर्ड. तो वो हमने उसके पॉइंट्स, जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, उन पे जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बिहाफ पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में. नाउ द जो आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, इसका मतलब है कि इस तरह के जो यूनिट सेल्स हैं वो आपके क्रिस्टल लैटिसेस के अंदर जो हमें मिली है वो टोटल कितनी है, 7 है. और वो 7 कौन कौन सी है? फर्स्ट इज द क्यूबिक यूनिट सेल्स, एंड सेकंड इज रोम्बोहेड्रल, थर्ड इज टेट्रागोनल, एंड फोर्थ इज हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, एंड ट्राइक्लिनिक, एंड that is monoclinic. And then the 14 possible variation of the 7 crystal system is that in the cubic unit cell, the cubic unit cells are 3 type of cubic unit cells are present in the crystal lattice, that is simple cubic unit cell, that is primitive, and the second is body centered cubic unit cell, and third is FCC, that is face centered cubic unit cell. And let's see the parameters of the unit cells are divided into two parts, that is axial distance and then the axial angle. Okay, axial distance are the 3 A, B, C, that length, width, and height, and the axial angle is alpha, beta, and gamma. In between the A, B, C, the interfacial angles. Okay, and so we in the cubic unit cells, the 3 possible variations are present. The end center type cubic unit cell is not present, and then the A, B, C, that is the parameters in which we the A equals to B equals to C, and in the angle is alpha, beta, and gamma, that is almost the all are equal, and the angle is 90 degree. 90 degree angle देखा गया. और हम क्यूब को नॉर्मली जब ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का हमारे पास में शेप स्ट्रक्चर निकल के आता है, दैट इज द क्यूब. ओके, ये हम क्यूब देखते हैं. क्यूब में सारे साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट भी, और जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, एंड दैट इज इक्वल ऑन द 90 डिग्री. ओके, नाउ and the examples of the cubic unit cells are NaCl, KCl, diamonds, and etc. Now the next is rhombohedral और trigonal. ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल में क्या होता है? जो हम क्यूब की बात करते हैं तो
क्यूब में क्या कहते हैं, ए बी सी द 3 axial distances are equal. Okay, in the rhombohedral also a b c, a equals to b and b equals to c, but the angles are not equals to 90 degree. इसका मतलब ये जो शेप है इसको हम अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें इस तरीके से, जब हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो अभी जस्ट जैसे हल्का सा इसको ट्विस्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो एंगल्स होंगे वो जो 90 डिग्री इक्वल थे क्यूब में वो क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इसको जब हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो डिफरेंट हो जाएंगे. ओके, नाउ इन द rhombohedral the only the primitive unit cell type of unit cell is present in this crystal. सिर्फ primitive होती है और जो पैरामीटर्स है डिस्टेंस में क्या होगा, a equals to b equals to c, and then the angle is alpha not equals to beta not equals to gamma and not equals to 90 degree. यानी 90 डिग्री एंगल के इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंट एंगल्स होंगे. एंड नाउ द एग्जांपल ऑफ द rhombohedral is calcite. In the rhombohedral is calcite, that is CaCO3, and then the quartz NaNO3, etc. Now the third is tetragonal. टेट्रागोनल की बात करते हैं तो इसमें कितने टाइप की यूनिट सेल्स होंगी, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल प्रेजेंट होंगी. यानी सिर्फ 2 ही टाइप की यूनिट सेल्स जो होंगी वो टेट्रागोनल टाइप की प्रेजेंट होंगी क्रिस्टल सिस्टम में. इसमें ना तो आपकी एफसीसी होगी और ना ही एंड सेंटर्ड होगी. ओके, एंड द जो हम पैरामीटर्स देख रहे हैं तो डिस्टेंसेस कैसे होंगे, a इक्वल्स टू b, लेंथ और विड्थ तो सेम होगी बट जो हाइट होगी वो क्या होगी, डिफरेंट. यानी 2 साइड्स तो इक्वल होंगी बट थर्ड साइड क्या होगी आपकी, डिफरेंट होगी. तो a इक्वल्स टू b, b नॉट इक्वल्स टू c, एंड द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री. सभी में एंगल्स क्या होंगे आपके, सेम होंगे और सेम 90 डिग्री के इक्वल होंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हेक्सागोनल. हेक्सागोनल की जब हम बात करते हैं, हेक्सागोनल का शेप जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है. बेंजीन देखी है आपने, ठीक है. इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है. इसके अंदर 12 कॉर्नर्स होते हैं हेक्सागोनल के अंदर, और जो एजेस होती है वो 18 एजेस होती है. ठीक है, अगर हम फेस सेंटर्ड की बात करें या टोटल फेसेस की बात करें तो फेस कितने होते हैं, 6, इस तरफ 7 और 8, टोटल फेसेस कितने होंगे, 8 होंगे. कितनी होंगी एजेस, 18 एज होंगी. ठीक है, और आपके फेस होंगे टोटल 8, दैट इज 6 + 2 = 8, एंड देन नाउ द कॉर्नर्स कितने होंगे, 6 and 6, that is 12 कॉर्नर्स होंगे. इस तरह का हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर होगा. और जो हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर होता है उसमें ओनली द वन टाइप ऑफ यूनिट सेल इज प्रेजेंट इन द क्रिस्टल सिस्टम, दैट इज primitive only. Primitive, it means that the atoms, ions or molecules are present only at the corners, not on the face, not on the center of the body. Okay, now the हेक्सागोनल की जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, a इक्वल्स टू b, b नॉट इक्वल्स टू c. यानी a और b, अगर हम इसकी बात करें इस कॉर्नर की तो a और b तो क्या होगा, सेम होगा, बट दैट इज हमने हाइट ले ली इसकी, ये क्या होगी, डिफरेंट. ठीक है, तो a इक्वल्स टू b, b नॉट इक्वल्स टू c. नाउ द एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा. एंगल्स, सॉरी, दैट इज अल्फा और बीटा जो होंगे वो तो क्या होंगे आपके, दैट इज 9. यहाँ पे जब हम इसकी बात करते हैं इस कंडीशन में तो वो तो होगा 90 डिग्री, बट ये जो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना होगा, 120 डिग्री. हमने क्या कहा, अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट द गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री. यानी 2 तरह के एंगल्स होंगे इन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा एंड गामा. नाउ द fifth is orthorhombic. Orthorhombic is a different type of unit cell in which the 4 type of
unit cells, that is primitive, FCC, BCC, and the end center. 4 type unit cells are present in the orthorhombic unit cell in the crystal system. और इसमें और इसके जब हम पैरामीटर्स देखते हैं तो क्या होगा, A not equals to B, B not equals to C, just like a rectangle. तो उसमें जो भी शेप्स हैं, वो जो भी साइड्स हैं A B C, वो नॉट इक्वल्स होंगी एक दूसरे के. Not A not equals to B not equal to C. Okay, and now the angles are all angles are equal to 90 degree. Alpha, beta, and gamma equals to 90 degree. Now the 6 is triclinic. Triclinic और ऑर्थोरॉम्बिक में क्या डिफरेंस होता है? जिस तरह से क्यूब था, क्यूब में आपके A B C तीनों साइड सेम थी, रोम्बोहेड्रल में भी तीनों साइड सेम थी, एंगल्स सेम थे यहाँ पे, बट रोम्बोहेड्रल में क्या हो गया, एंगल्स डिफरेंट हो गए. क्या किया था उसमें, उस शेप क्यूब को हमने थोड़ा ट्विस्ट किया था. ऐसा ही सेम टू सेम ट्राइक्लिनिक में है. ऑर्थोरॉम्बिक के अंदर वही A not equals to B not equals to C है. Again in the triclinic the A not equals to B not equals to C. बट जो एंगल्स है वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे. एंगल्स जैसे ही उस रेक्टेंगल की जो ऑर्थोरॉम्बिक की जो शेप है उसको जैसे ही आप थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, हल्का सा उसको मोड़ते हैं, तो मोड़ते ही क्या हो जाएगा, उसके एंगल्स जो थे वो 90 डिग्री थे इन द ऑर्थोरॉम्बिक, वो अब क्या हो जाएंगे, डिफरेंट. और वो सारे के सारे अलग अलग एंगल्स हो जाएंगे, किसी का 45, किसी का 60, इस तरीके से. तो वो क्या हो जाएगा आपका ट्राइक्लिनिक शेप. और ट्राइक्लिनिक शेप में ओनली द वन टाइप ऑफ सिर्फ सिंपल यूनिट सेल ही प्रेजेंट होती है, और दैट इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इन विच द एटम्स कैन ओनली प्रेजेंट एट द corners, not in the face centers or body center. Now the fourth is monoclinic. मोनोक्लिनिक जो यूनिट सेल होती है उसमें 2 तरह की यूनिट सेल देखी गई है क्रिस्टल सिस्टम में, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. एंड सेंटर्ड जिसमें the atoms present at the corners and also present at the 2 faces which are perpendicular to each other. Now इसमें क्या होगा, A, B और C जो 3 साइड्स होती है, तीनों की तीनों क्या होंगी, एक दूसरे अनइक्वल होंगी, यानी A not equal to B, B not equals to C. And the जो आपके angles होंगे in between the sides, the interfacial angles, that is alpha and beta is equals to 90 degree, but gamma not equals to 90 degree. जो gamma है वो 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री से कुछ हल्का सा ज्यादा या कम होगा. इस तरीके से ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, जो और 14 पॉसिबल वेरिएशन, जो 14 पॉसिबल यूनिट सेल्स हैं वो देखी गई है इन द क्रिस्टल सिस्टम. नाउ द क्वेश्चन, नाउ द टुडेज होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1. draw the 3 type of cubic unit cell. Question number 1, draw the 3 types of cubic unit cell. And question number 2, what are the parameters? What are the meters? What are the parameters of the following types of unit cell? A is tetragonal and B is triplet. Thank you very much.